Hi everybody, this is Shahryar Shahid and you're watching Pakistan Connect. You must be wondering, what am I doing here? Let me start my conversation with the fact कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है. पाकिस्तानी यूथ चाहे तो क्या नहीं कर सकती. We keep on hearing about wonderful Pakistani youth doing outstanding job on international platforms. लेकिन क्या हमने कभी इस बारे में सोचा है कि वो प्लेटफॉर्म्स कौन प्रोवाइड करते हैं? क्या हमने इस बारे में सोचा है कि who are those wonderful entrepreneurs जो कि रास्ता बनाते हैं उस टैलेंट का इंटरनेशनल लेवल पर जाने के लिए? So without any further delay, let me tell you कि आज जो मेरे प्रोग्राम में गेस्ट आए हैं, he is a पाकिस्तानी entrepreneur और वो बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं in telling students what they need to do on international level. He is Pakistani entrepreneur, as I earlier mentioned, and he is co-founder of Steam. So what is Steam? Let's hear from him. We have in our studio Mr. Khalid Sattar. Assalamu alaikum. जी वालेकुम अस्सलाम. How are you? अल्हम्दुलिल्लाह. Thank you so much for joining us. Thank you for inviting me. आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, all good. So सबसे पहले तो मैं खालिद साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि entrepreneurship why? Yes, that's a very good question. लाइफ में बहुत सारे लोग जो बहुत हाई ग्रेड्स लेते हैं, बड़ा अच्छा स्टडी करते हैं, वो अच्छी जॉब्स के लिए चले जाते हैं. जो हमारी तरह होते हैं, एवरेज होते हैं या अबव एवरेज होते हैं थोड़े से, दे हैव नो चॉइस, करें क्या. तो दैट्स हाउ वी स्टार्ट आवर करियर. स्पेशली पाकिस्तान में तो एक अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह नहीं होती, तो पीपल लुकिंग फॉर जॉब्स. सो व्हेन आई graduated, I decided to start my own business. So it's been more than 30 years now. I've been doing my business. Wonderful. So I mentioned a word, STEAM. So we have heard about STEM, but I would like to hear from you, what is STEAM? And you're the co-founder of Global STEAM Summit. So Yes. sir, I'm so curious to know, and can you let our audiences know that ये क्या है? Yeah, so STEAM actually stands for Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Okay. So what happens, like आपने normally STEM सुना होगा. So we added a missing part, that was arts. Arts is actually very close to the culture. So we decided to basically add the art, and it's now a educational and cultural diplomacy. Wonderful. So we are organizing an event in Houston, Texas, and bringing 16 countries, students from 16 countries to participate and share the education and share the culture. And I believe Pakistan is one of them. Pakistan is one of the countries, and we are proud to say that we are Pakistanis, those who are organizing this event. Zabardast. So it's like a platform for students के आगे career opportunities के लिए and for the learning opportunities. Absolutely, it's a great platform. So we are picking up top-notch students from all over the countries, just like Pakistan का अगर हम example कर देते हैं. So 5 categories हैं हमारी: science, technology, engineering, arts and mathematics. So we are bringing 2 teams from each country. Right. So those students each category में से हम select करने जा रहे हैं. And उनके अंदर not only the academic but also leadership qualities हम देखेंगे. So we will give an opportunity even to the underserved students, those who have come from the middle class families. So it's going to be a combination of students, but we will make sure that they're going to be the right people, and especially already they are recognized. So 5 सूबे हैं हमारे, हम 5 सूबों से 2-2 students को pick करेंगे each category. Amazing. तो उनका competition होगा, then we'll bring them to US, and they will be participating and working and showing their talent in front of other 16 nations. Great. So Mr. Khalid, I want to ask, how does it work? Like आपने कहा कि हर province से आप you select 2 students, if I'm not wrong. Each category 2 students. Each category 2 students. So what is the criteria, number 1, and how can the students who are watching this program वो क्या करें कि वो इस तक रसाई हासिल कर सकें? That's good question. Basically हम लोग 12th grade and above के students को pick कर रहे हैं for many reasons, और उसमें age 18 to 23 in criteria. Right. और हम लोग Ministry of Education से और HEC से डेटा लेंगे जो टॉपर्स हैं अपने सब्जेक्ट मैटर्स में. तो उनमें से हर प्रोविंस से हम 2-2 स्टूडेंट्स को पिक करके compete करेंगे वो आपस में,
और उनमें से सिलेक्शन होगी। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, यहाँ पर मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ इज स्टीम डिफरेंट फ्रॉम स्टेम? क्या आपने बताया आर्ट है, सो व्हाट आर द आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ या ऐसा क्या है जो कि उस डिफरेंट बनाती है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। देखिए, एजुकेशन पे तो बहुत काम हो रहा है। बिल्कुल। इंटरनेशनली अभी जो आजकल के मुल्कों के हालात हैं, सो कल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कल्चर प्लेज अ वाइटल रोल, और स्पेशली जब आप वी वांट टू मेक इट एज लाइक अ ग्लोबल सिटीजनशिप। इसके अंदर जब डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट कल्चर्स के लोग स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो दे विल इंटरेक्ट टू ईच अदर। लाइक एजुकेशन ओपन्स द डोर, बट कल्चर एक्चुअली ब्रिंग्स ट्रस्ट बिटवीन ईच अदर। बहुत सारा जैसे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ को भी हम ले रहे हैं, इसी तरह हम साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ को भी ले रहे हैं। सो उन एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि मिडल ईस्टर्न का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह के ये लोग हैं, इसी तरह बाकी कंट्रीज़ के भी। तो जब ये इकट्ठे एक कंपटीशन में आएंगे और अपने कल्चर्स को लेके आएंगे साथ, तो इट विल गिव देम अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम ईच अदर, टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स कल्चर। राइट, टू कोएग्जिस्ट। टू कोएग्जिस्ट। एंड आई थिंक इससे ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं हो सकता, बिकॉज आई बिलीव, दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन, दैट students and everybody need to coexist, learn to coexist, ताकि आगे society उसी तरह आगे बढ़ती है। Absolutely. So my question to you is this, कि what is the biggest challenge आपको आपकी जर्नी रही होगी स्टीम बनाने में, इसको सब एक आइडिया को यहाँ से एक प्रैक्टिकल शेप में लाने के लिए? So how did it happen? I would like to know about it briefly, about the journey, and what is the biggest challenge right now you're facing? That's actually that's the question I was expecting from you. Okay. Very good question. It was not that easy journey. सबसे पहले कि जब ये कॉन्सेप्ट पे काम किया हमने, इसके पूरा प्रोजेक्ट प्लान किया, सबसे पहले we tried to connect with पाकिस्तानी डायस्पोरा इन ह्यूस्टन, जो बिजनेस कम्युनिटी है। So पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तानी, अगर आप देखें यूएस के अंदर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, म्यूजिकल इवेंट्स, कवाली इवेंट्स, बट वी वांटेड टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, जो बेसिकली मीनिंगफुल हो, पर्पसफुल हो, मिशन बेस्ड हो। तो जब ये प्रोजेक्ट लेके कुछ लोगों के साथ मैंने डिस्कस करने की कोशिश की, तो दे इवन डिडंट गिव मी अ चांस टू डिस्कस अबाउट इट। दे डिडंट इवन ट्राई टू अंडरस्टैंड के हाउ बिग दिस प्रोजेक्ट इज। सो बीइंग एंटरप्रेन्योर, आई डिसाइडेड ओके, इसकी फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए जो पैसा लगेगा, I injected my own money to make sure कि इसको इस काबिल करें कि हम लोग इंटरनेशनली रिकग्नाइज़ कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कंट्रीज, स्पेशली टर्की हो गया, इजिप्ट हो गया, एंड सम अदर कंट्रीज़, दे आर द फर्स्ट वन जिन्होंने अप्रिशिएट किया, एंड दे वेंट आउट ऑफ वे टू सपोर्ट दिस प्रोजेक्ट। एंड सिटी ऑफ ह्यूस्टन, they endorsed us, and when I took this project to HCC, Houston City College, it's basically one of the leading public-private college system. So when they saw this project and they loved it, and they offered their venue as a venue partner for 4 days. Like इसमें a lot of requirements were there, but they took care of that. Dr. Reema Adil, she's a vice chancellor. She had a faith in me. She was the first person जिन्होंने trust किया, and उन्होंने मुझे opportunity दी, and she connected me with a lot of other people, those who are helping us in academic perspective and even management perspective as well. Right. So sir, what is the first of all, that is very amazing thing कि आपने इतने बड़ा एक step लिया खुद से ही, अपनी मदद आपके तहत आप चले. So sir, my next question, I would like to extend the previous question. What challenge do you face जब आप students को you are picking up students, या आप student को interact कर रहे होते हैं पाकिस्तानी students के साथ, तो do you see anywhere जहाँ पर और काम किया जा सकता है, या students को आप कोई पैगाम देना चाहते हैं? एक्चुअली हम लोगों ने इसके ऊपर एकेडमिक पर्सपेक्टिव से, स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव से बहुत सारी जो है वो कमेटीज़ बनाई हैं. जैसे ईच कैटेगरी के अंदर 4-5 हमारे एडवाइज़र्स हैं. साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, आर्ट्स के ऊपर हम लोग कुछ लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, एंड मैथमेटिक्स में. उसमें हमने डाइवर्सिफाइड एक्सपर्ट्स लिए हैं, वो टीचर्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, एंड इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स भी हैं.
So they are working on the modules and they're gonna come up with all the details. ये सारी detail हमारी website पे भी available होगी. Right. So it will give an opportunity to all the students, not only in Pakistan, worldwide. They can learn how this event's going to be happen, how they can contribute into it. Right, right. So I think that is an amazing opportunity for the students, and I hope कि जो students देख रहे हैं उनको रहनुमाई मिल रही है इस हवाले से. और sir, another term that I have been hearing a lot, and we were talking about it a lot, that is medical tourism. Sir, this is something very new for me, and I am sure the people who would be watching, they would be amazed to hear this new terminology. So sir, can you simplify it for us? Just consider that I'm a 5-year-old. Yes, medical tourism is not the old term, it's happening. It's just like a tourism but related to medical. We started this concept from US. तो मेडिकल टूरिज़म को हमने आइडेंटिफाई किया कि अमेरिका के अंदर इंश्योरेंस बहुत हाई होती है. बहुत सारे जो यूएस सिटीजन्स हैं, अमेरिकन हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड इट. या फिर बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें आउट ऑफ पॉकेट जो है इट्स यू हैव टू पे फॉर दैट, लाइक डेंटिस्ट्री. It's so expensive. Yeah, and hair transplantation, cosmetics, orthopedics. There are many areas जहाँ पे Americans traveling out of country. 1.8 million Americans every year they travel abroad for their health services. So इसको health tourism भी हम बोलते हैं. Right. तो इसमें हमने ये जब आइडिया आया, जब इस पे मैंने थोड़ी रिसर्च की, तो आई वांटेड टू फिगर इट आउट कि हम अपने मुल्क के लिए कैसे काम कर सकते हैं. इसमें शहाब करनी है वन ऑफ आवर मेंटोर एंड आवर को-फाउंडर, और ही आस्क्ड मी टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, एंड देन हम दोनों ने मिलकर बड़ा काम किया इसके ऊपर. सो वी डिसाइडेड, अभी मैं रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो दुबई में भी गया हुआ था. आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू द यूएई गवर्नमेंट एंड एज वेल एज सम प्राइवेट सेक्टर इन यूएई एज वेल एज इन सऊदी अरब. सो अभी मैं रिसेंटली लाहौर में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हमारा समिट था मेडिकल टूरिज़म पे, टू एजुकेट व्हाट वी आर डूइंग. सेम थिंग आई हैड अ ब्रीफिंग इन इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स. सो मैं आपको बड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ. मेडिकल टूरिज़म वी आर ट्राइंग टू टारगेट पाकिस्तानी डायस्पोरा जो अमेरिका में रह रहे हैं, एंड जब वो नॉर्मली पाकिस्तान विज़िट तो करते ही हैं. सो वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड देम अ प्लेटफॉर्म जब वो यहाँ पे आएँ, या स्पेशली अपने हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी आएँ, तो उनको यूएस स्टैंडर्ड के को सामने रखते हुए सर्विसेज मिलें, एंड इट्स वे चीपर एज़ कम्पेयर टू यूएस और एनी अदर कंट्री. सो इसमें पाकिस्तान की इकॉनमी में भी बेहतरी होगी, हमारे डॉक्टर्स भी रिकग्नाइज्ड होंगे, एक ट्रस्ट भी बिल्ड होगा. और जैसे ही फ़ेज़ 1 के अंदर हम इन एरियाज़ को, जैसे मैंने आपको बताया, डेंटिस्ट्री हो गया, हेयर ट्रांसप्लांटेशन हो गया, कॉस्मेटिक सर्जरीज, ऑर्थोपीडिक्स, इवन प्रिवेंटिव केयर्स, इसके ऊपर जैसे ट्रस्ट बिल्ड होगा तो फिर बाकी लोग भी आएंगे. इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री. आने वाले 2030 में इट्स गोना बी ओवर 1.3 ट्रिलियन US डॉलर्स इंडस्ट्री. आप सोचिए अगर उसका 2%, 3% भी पाकिस्तान अगर अचीव करता है तो इट्स गोना बी अ बिग नंबर. That's huge. So yeah, it's gonna be a huge number. So हमारा बहुत टैलेंट है. हमारे अपना है डॉक्टर्स एसोसिएशन है अमेरिका में. दे हैव मोर देन 5,000 डॉक्टर्स ऑल टुगेदर. ओवर 25,000 डॉक्टर्स आर लिविंग इन अमेरिका, हाईली क्वालिफाइड. सब बड़े और अच्छे हॉस्पिटल्स में आप जाएं तो आपको पाकिस्तानी फिजिशियंस एंड सर्जन्स मिलेंगे, एंड दे आर सो अमेजिंग. सो व्हाई नॉट कि हम लोग मेडिकल टूरिज़म में पाकिस्तान को रिकग्नाइज करें, चूँकि यही टैलेंट यहाँ से बाहर जा रहा है. तो व्हाई नॉट टू ब्रिंग आवर पाकिस्तानी डायस्पोरा टू कम हियर एंड एक्सपीरियंस द थिंग्स. मेडिकल टूरिज़म को हम इससे भी एक स्टेप आगे जा रहे हैं. Okay. We are trying to create jobs as well. We are trying to create hands-on experience for our medical graduates जो यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेजुएट होते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, तो यहाँ पे जॉब्स नहीं मिलती उनको. अगर मिलती भी है तो 60-70,000 रुपीज़ से स्टार्टअप होता है. सो वी आर वर्किंग ऑन अ वर्चुअल मेडिकल असिस्टेंट प्रोजेक्ट VMA, जिसमें अमेरिका के अंदर बहुत सारे जो क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स हैं वो दे आर ऑथोराइज टू हायर वर्चुअली असिस्टेंट. तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं या मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, दे कैन बी पार्ट ऑफ इट. दे कैन अर्न वे बेटर देन व्हाट दे आर अर्निंग हियर. ये हमारी पाकिस्तान की इकानमी भी बहुत बड़ा हेल्प करेगी. ऑन टॉप ऑफ दैट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी मिलेगा हमारे पाकिस्तानियों को मेडिकल फील्ड के अंदर कि यूएस का हेल्थ सेक्टर कैसे काम करता है, और इकोनॉमी बेहतर होगी और यहाँ की यूथ भी और पॉलिश होगी. सो सर, आई वुड लाइक यू टू पिंग मोर अबाउट इट.
that you talked about you providing platform. So is it a digital platform, or like can you let our audiences know or young doctors who are watching कि वो क्या reach out कर सकते हैं, क्या process होता है इसका? हम लोग अभी इनिशियल स्टेज पे आए हैं. दैट वाज द रीज़न आई एम हियर. Okay. तो हम लोगों ने अभी सबमिट की है. हम लोग 3 एरियाज़ में इसको डिवाइड कर रहे हैं, कराची, लाहौर, पिंडी एंड इस्लामाबाद. इंशाल्लाह इसको एक्सपेंड भी करेंगे. तो इन तीनों एरियाज़ में हम अलग अलग टीम्स बिल्ड कर रहे हैं. वो टीम्स जो हैं वो लोकल अथॉरिटीज़ के साथ भी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के अंदर कोऑर्डिनेट करेगी ऑन आवर बिहाफ, और हम उनको पूरी तरह यूएस से असिस्ट करेंगे. तो उसके अंदर पहले फेजेस के ऊपर जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या डॉक्टर्स हैं, उन लोगों को हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप जो वर्क एथिक्स हैं उसके ऊपर तवज्जो दें. पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है. 1-2 सिर्फ चीज़ें हैं जिस पे आप काम होने वाला है. एक हाइजीन्स के ऊपर, जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जो नर्सेज हैं उनकी केयर जो है वो क्वेश्चनेबल है. जहाँ के जो हेल्थ स्टैंडर्ड्स को थोड़ा फॉलो करना पड़ता है. बायलॉज जो हैं बने तो हुए हैं, उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. अदर देन दैट वी हैव एवरीथिंग someone can imagine. Pakistan can basically a great opportunity in medical tourism for entire world. So thank you so much for sir for joining us. I want to ask you lots of questions, and this is very interesting, and I would really like you to dig more deeper and dive more deeper, but unfortunately we have time constraints. So sir, जाने से पहले I would really like you to give any मैसेज टू आवर यूथ. एक तो नंबर 1 यूथ को क्या मैसेज देना चाहिए पाकिस्तान की, एंड नंबर 2 ऐसे जो इनिशिएटिव लेने वाले माइंड्स हैं जहाँ पर आप थे कुछ साल पहले और वो सेल्फ डाउट में है कि करूँ या ना करूँ, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपनी यूथ को ये बोलूँगा कि फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी आपने काम करना है तो फोकस करें और फेलियर से नहीं डरें. A person like me multiple time मैं फेल हुआ, बट आई नेवर गिव अप. आप फोकस करें, नेवर गिव अप, और बड़ी डायरेक्शन अपनी क्लियर रखें और डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, एंड इंशाल्लाह स्काइज आर द लिमिट्स फॉर यू गाइस. एंड सर वो इनिशिएटिव जो ले रहे हैं और वो फंसे हुए हैं कहीं प्रोसेस में, उनको क्या कहना चाहेंगे? आप अपने जो सबसे पहले जो आप मेंटोर्स होने चाहिए आपके पास, जिनसे आप शेयर कर सकें जो भी प्रॉब्लम है, and identify, they talk to them very openly, talk to them and let them help you out with that, and follow it. Wonderful, and all the best to you with your future things. Thank you so much. Thank you so much for joining us. So this was medical tourism and STEAM. अगर आप लोग भी सोच रहे हैं कि आप लोगों ने बाहर जाना है, करियर अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, so please watch the full episode.